Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Ali Taimur, And I'm Fabiha Adam. and we'll be serving as your host for this evening. We've got a bunch of amazing things lined up for you all, including panels that widen your horizons, super helpful masterclasses, my comedic bits, and much, much more. So before we begin, let's make sure everyone's snacks and stuff is sorted. Good thing you mentioned that because mine sure are. Now, let's move on to our next panel, Ek Arz Tamanna Hai. But you're probably wondering, right, what it's about. So, koi information to do, Ali. The main theme that will be explored in this talk will be corporate social responsibility. So it's got something to do with the community? Yep, well, sort of. CSR refers to the ethical framework and commitment to businesses to contribute positively to society and the environment, beyond their primary goal of generating profit. It's about recognizing that businesses have a responsibility not only to their shareholders, but also to their employees, customers, communities, and the country as a whole. Wow, not gonna lie, I'm definitely intrigued. Joining us in this will be two incredible speakers who we're pretty sure you all know of. One of Karachi's most philanthropic social workers, the man with a vision that aims to reach higher than the sky. The hero who we as Karachiites trust and admire. Let's welcome the founder and pioneer of JDC, the welfare organization that is involved in 89 and counting projects. The man who does it all, Dr. Zafar Abbas. Accompanying him in this discussion is a devoted social worker who uplifts underprivileged communities in Pakistan and Houston, providing essential resources and empowering individuals to build brighter futures through philanthropic efforts. He advocates policies for prosperity, reflecting his commitment to innovation and community impact. So without further ado, let's welcome the multi-award-winning entrepreneur and founder of the Shekhani Group, Ali Shekhani. Last, but certainly not the least, we have an innovative storyteller and trainer for the International Labour Organization here with us today. Someone who has been instrumental in bridging the gap between rural artisans and urban markets. Her work not only promotes sustainable economic growth, but also preserves cultural heritage, making her a key voice in discussions about social enterprise and responsibility. She is the founder of the Save Our Children Foundation, which works for the rescue and rehabilitation of street children. Let's have a round of applause for Shayan Malik. Now, care to guess who will be moderating this discussion? Let's give you some hints. He's got 20 plus years of experience as a brilliant professor and a PhD in history. The University of Karachi students are in absolute awe of him, and lucky for us, he also blesses us with his knowledge at Zabist. Let's welcome on stage the man who continues to believe in the power of higher education, Dr. Muiz Khan. Now we would like to pass the mic over to Dr. Muiz. Please enjoy the panel. Thank you. Assalamu alaikum. First of all, I welcome all of my panelists over here, Shekhani Saab, Dr. Zafar Iqbal, and I have heard that Shekhani Saab is going to be doctor from the next morning, tomorrow. You have been, it's a great news over here, we need to share, that Ali Shekhani is going to be awarded an honorary PhD degree tonight from some university. I don't know which university is it. Governor Sindh has nominated him for honorary degree, and tonight he has to attend a ceremony for that. So to be very soon Dr. Ali Shekhani and Shayan Malik, madam. So this panel, as we have an understanding about that at CSR, corporate social responsibility. The thing is that no society can evolve, perform well, and go ahead of its neighbors and other communities of the world without uplifting its society as a whole. We always talk about vertical, we always see the vertical growth of wealth in the hands of few.
rather than the horizontal distribution of wealth amongst the masses. Pakistan is the 5th largest population in the world, and unfortunately the number of underprivileged people and the people who are living under the poverty line is huge. और जिन लोगों के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, जिन लोगों के पास क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं है, उस तरह की सोसाइटी के अंदर हमारे पास जो बिजनेस वाले लोग हैं, जिनके पास बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट हैं, उनको मेरे ख्याल से अब ज़रूरत है कि अब आगे आने की, आगे वो आएँ और आगे आके काम करें. एंड आप तीनों ही लोग बिल्कुल अलग अलग, वैसे तो काम सबका एक ही है, लोगों की खिदमत करना, लेकिन आप लोग तीनों अलग अलग एक बैकग्राउंड से हैं और अलग अलग डोमेन्स में काम कर रहे हैं. और शेखानी साहब जो हैं, he's an American citizen and he's been working from there. He's an American businessman, पाकिस्तानी American businessman, और वहाँ से पाकिस्तान आते हैं. ज़फ़र अब्बास जो हैं वो मुस्तकिल पाकिस्तान में ही होते हैं, 12 महीने यहाँ बैठ के काम करते हैं. और ज़फ़र अब्बास साहब को अगर ये कहें कि जी ये कहीं एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो गलत है, अगर इनसे कहें कि ये हेल्थ में काम कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ये इतने सारे काम कर रहे हैं कि मुझे तब याद भी नहीं किस किस चीज़ में ये काम कर रहे हैं. तो इन्होंने, मुझे याद है मेरा इनसे पहले इंटरेक्शन हुआ था कोविड के ज़माने के अंदर. मैं आपके पास आया था. मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं आपसे उस वक्त मिला कि स्टूडेंट्स मेरे लेकर के चले गए वहाँ पे काम क्या हो रहा है. तो हज़ारों की तादाद में थैले बंधे जा रहे थे और चीज़ें आ रही थी और वो पैकिंग जा रही थी लोगों के घरों में. तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट इट फ्रॉम ज़फ़र अब्बास कि ज़फ़र साहब, आप अपनी एक मेरा ये सवाल एक्चुअली तीनों से है. तीनों से मैं पूछना चाहूँगा एक ही चीज़ जो कि आप लोगों को पता है, क्योंकि आपका तीनों का अपना बैकग्राउंड और आपका काम करने का डोमेन भी अलग अलग है. तो आपको वो क्या चीज़ कंपेल की है, मतलब ज़फ़र अब्बास एक इंडिविजुअल था, मेरे जैसा था, इनके जैसा था, वो क्या चीज़ थी जो ज़फ़र अब्बास उस पॉइंट से निकल के ज़फ़र अब्बास वो जो है, तो वो पॉइंट बताइए, वो चीज़ आपने क्या ऑब्जर्व की सोसाइटी में जिसमें आपको पुश किया कि नहीं मुझे कुछ करना है. देखिए, मैं अगर बहैसियत कराची एड्स बात करूं तो महरूमियाँ, जबर, ज़्यादती, ज़बरदस्ती एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करना कि जिसके अंदर ना सड़कों का वजूद है, ना ट्रांसपोर्ट का वजूद है, ना अस्पताल का वजूद है, ना अच्छे स्कूल का वजूद है. आप सुकून वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते. आप इंसाफ के लिए ज़लील हो जाते हैं. अगर किसी का कभी कोई मसला पड़ जाए मिडिल क्लास फैमिली का ऐसा कि जिसमें उसको इंसाफ की फरामी, इंसाफ की ज़रूरत हो, तो किसी अच्छे वकील से टाइम लेना, ना कि उसको अपना वकील बना, तो मतलब हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं बहुत डेंजर है. 2010 के सैलाब में जब मैंने देखा कि सैलाब में डूबे हुए लोगों से उनकी ज़बान और उनका मसलक पूछ के राशन दिया जा रहा है, तो मैंने कहा नहीं यार, इस टैबू के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा. ठीक है, आप सियासत करें मसलक के नाम पे, आप सियासत करें ज़बान के नाम पे, आप अपनी अपनी तंजीमें बनाएं, सियासी पार्टियां बनाएं, मजहबी पार्टियां बनाएं, लेकिन सैलाब में डूबे हुए लोगों से ये सवाल अच्छा नहीं है कि हाँ भाई मेरे मसलक वाला कौन है, हाथ ऊपर करना, ये लें जी आपको राशन. सही है, कोविड में सबके सामने है, अब करें, आप करें, आपकी अलग. लेकिन हम तो इसके ख़िलाफ़ रोडों के ऊपर हैं, हम इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़. और फिर मैंने इसी चीज़ को बेस बनाकर जिस दिन अपना इदारा 2010 के सैलाब में काम करने के लिए बनाया, तो पहली लाइन ये बोली कि हम बिला तफरीक, रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक काम करें. जैसे ही आप ये ऐलान करते हैं तो जो आप देखें, पाकिस्तान में कोई भी फलाही तंजीम कम्युनिटी की सपोर्ट के बगैर नहीं बन सकती, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो. शुरू काम कम्युनिटी से होगा, जाएगा ह्यूमनिटी तक. लेकिन जब आप कम्युनिटी में एक इदारा बनाएं और पहले दिन ही ऐलान कर दें कि मुझे पैसा ए दे, पैसा मैं बी को भी दे सकता हूँ, सी को भी दे सकता हूँ, डी को भी दे सकता हूँ, ए को ही नहीं दूंगा, तो उसी दिन ए कहता है चल भाई मैं क्यों दूँ तुझे. जब पूरा माशरा अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, एनजीओ बनती इंटरनेशनल नाम से, लेकिन वो कहती करूँगा मैं अपनी ज़बान, अपनी आइडियोलॉजी, अपना नज़रिया, अपना फ़िरका, अपना, तो तुम कहाँ से लाइन लेकर आ रहे हो. तो बहुत मुश्किल था. लेकिन मैंने उसी दिन ऐलान किया जिसको बैक होना है हो जाए. और वो दिन है, आज का दिन है आपके सामने. हम तो नंगा कर रहे हैं इस मुल्क में टैबोस को कि तुम ये इतनी बड़ी एनजीओ बने हुए हो, मसीहा बने हुए हो, इंसानियत के मसीहा बने हुए हो. 17 रुपए का खून का टेस्ट इन लोगों से तुम 5,500, 4,500 का कर रहे हो. ये इंसानियत है. 17 रुपए वाला खून का टेस्ट है. अच्छे बिजनेसमैन हो, 3% प्रॉफिट ले लो,
तुम्हारा टर्नओवर तो एक अच्छे बिजनेस में किसी भी टर्नओवर को बोला जाता है कि जी मेरा पैसा महीने में 3 दफा घूम गया। एक दफा घूमा 3% प्रॉफिट दिया, 3 दफा घूमा 9% दे गया। यानी कि मैंने अगर 1 रुपया लगाया था तो साल के एंड में 2 रुपए हो गए। कितना बड़ा बिजनेस है। आप जो बिजनेस के बच्चे होंगे समझ सकते हैं, ये तो दुनिया के किसी बिजनेस में ऐसा प्रॉफिट नहीं है कि 1 करोड़ लगा के 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़। आप कितना ले रहे हो? आपने 17 रुपए के टेस्ट का 100 गुना कर लेते हैं, 34 रुपए ले लेते हैं, 34 रुपीज। 1000 गुना 170 रुपए, 10,000 गुना 1700 रुपए, नहीं 4500 रुपए। अभी बस मैं अपनी बात खत्म करके फिर देता हूँ माइक। अभी मैंने अली शेखानी साहब को अमेरिका से इसलिए बुलाया, मैंने कहा यार बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे यहाँ। इन्होंने बोला क्या? मैंने कहा यार खैराती लैब से मैंने खून का टेस्ट कराया, खैराती इदारे की लैब से, जहाँ लिखा है बड़ा बड़ा के चैरिटी हॉस्पिटल है, लेकिन है बड़ा सबसे पाकिस्तान का, कराची का। तो मेरा 17 रुपए वाला खून का टेस्ट हुआ 4,500 रुपए का, 9 रुपए वाला टेस्ट हुआ 3,000 रुपए का। तो लोगों को मैं कैसे अवेयर करूँ? तो उसके लिए मैंने वर्किंग की और 16 अरब रुपए की मशीनें नुमाइश औरंगी पे लगा दी, जो ना स्टेट के किसी अस्पताल के पास है ना प्राइवेट अस्पताल, वहाँ फ्री में टेस्ट हो रहे हैं। अब मैंने कहा ये कैंसर, हर दूसरा केस कैंसर 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 कैंसर। सरकारी अस्पताल में जाइए, वो आपको जिस आखिरी जो रेज वाला टेस्ट इलाज है उसकी डेट दे रहे हैं 4 महीने बाद की। मरीज की सर्जरी हो गई है, कीमोथेरेपी हो गई है, अगर रेज अब नहीं हुई उसकी तो ये दोबारा आ जाएगा कैंसर। मेरे ख्याल से आप अभी यहाँ रुके, क्योंकि जो मेरा आखिरी बाद में सवाल होगा ना फ्यूचर में, आप उसमें इस पे डिटेल में। मैं नहीं, ये आपके उस वाले सवाल का बता रहा हूँ क्यों मैं इधर आया, बस ये उसको कंप्लीट कर रहा हूँ फिर मैं बताता हूँ। तो मैंने उसके ऊपर जब वर्किंग की तो मालूम हुआ जिस रेस के आप 15 लाख रुपए ले रहे हैं उसकी कॉस्ट 1500 रुपए। मैंने अवेयर कर दिया, लोगों को बता दिया। मैंने कहा भाई ये जुल्म हो रहा है तुम्हारे साथ, अब हम उस पर काम कर रहे हैं। और ये उस सिस्टम से बगावत है जिस सिस्टम कि मैं जिस हल्के का बंदा कहलाऊंगा, क्योंकि आप जिस अस्पताल को उठाओगे चैरिटी 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 चैरिटी, ओ भाई चैरिटी हो तो ये 35-35 हज़ार गुना प्रॉफिट किस बात का ले रहा हूँ। तो इस पर बेसिकली मैं सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा हूँ। मैडम मेरा यही सवाल आपसे भी है कि आपको किस चीज़ ने कंपेल किया कि जो आपने सेव आवर चिल्ड्रन जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कुछ अच्छे साल पहले, और आपने अंडर प्रिविलेज बच्चों को कराची के साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको पढ़ाने का, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देने का, ये वो बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि जिनके माँ बाप जो हैं घरों घरों में, जिनकी माएँ घरों घरों में काम करती हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, बाप जो हैं दिहाड़ी करते हैं, किसी दिन दिहाड़ी मिली नहीं मिली, आपने उन बच्चों को जो अप्रोच किया वो इंस्पिरेशन क्या थी या वो पॉइंट क्या था? जैसे मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मैं बताता हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान 40 साल की उम्र थी जब जंग आज़ादी हुई है 1857 में, 1817 में पैदा हुए थे। 1857 से पहले उनके कोई काम नहीं थे माशरे के लिए इतने बड़े बड़े, लेकिन उस जंग ने उनको कंपेल किया कि मुझे कुछ करना है, और उसके बाद जब वो हैं आज तक हम उनकी बात करते हैं। तो वो आपके लिए वो क्या ट्रिगर पॉइंट था? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरे लिए जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये था कि मैं भी एक लॉ की स्टूडेंट हूँ और मैंने लॉ पढ़ा हुआ है। तो ये देखा कि जो बच्चे हैं इनके लिए कहीं पे किसी किस्म का इंसाफ नहीं है, और हमारे मुल्क में जो बच्चे होते हैं उनकी प्रायोरिटी ऐसी लगती थी कि बिल्कुल ज़ीरो पे है। हालांकि हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे कानून हैं बच्चों के लिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होते। और जितनी हमारे लोग बैठे हैं यहाँ पे जो सोसाइटी के बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये एक ऐसी चीज़ को फ्लेम दे रही हैं और ऐसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं जो है स्ट्रीट चिल्ड्रन, बेगरी। छोटे छोटे बच्चों को लाया जाता है और ये आपकी आंखों के सामने है, ऐसा नहीं है कि आपको नज़र नहीं आता। तो मैं ये सोचती थी कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है उसका जहन आपके उस तरफ नहीं जाता, आप सोचते नहीं हैं ये कौन बच्चे हैं, ये कहाँ से आए हैं। मैंने ख़ुद कई बच्चों से पूछा, तो जैसे एक बच्चा एक औरत को चलाता हुआ जा रहा था रेडी पे, उसने मुझसे कहा कि मैं इसको हायर करके रही हूँ, इसको तनख्वाह देती हूँ, वो प्रॉबेबली 8 साल का बच्चा होगा और लाड़काना से लेके आई हूँ मैं, और ये मेरी एम्प्लॉयमेंट में है। तो इस किस्म का जो जुल्म हो रहा था बच्चों के ऊपर, तो मेरे ख्याल में कि एनीवन जिसके अंदर किसी किस्म की कॉन्शियस है और जो एक शऊर रखता है कि ये गलत है, इस वजह से मैंने सिर्फ फोकस करके बच्चों के लिए काम करना शुरू किया।
चाइल्ड लेबर के लिए शुरू किया, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर, और जो जो जुल्म हो रहा होता है बिहाइंड क्लोज डोर्स जो नज़र नहीं आता, जब एक छोटी बच्ची या एक छोटा बच्चा एम्प्लॉय होता है, वो लिटरली एक स्लेव बन जाता है। उसके साथ किसी किस्म की ज़्यादती हो सकती है बंद दरवाज़ों के पीछे। और अभी हाल में ही कल एक बच्ची का आया है कि वो उसको मर्डर किया गया और उससे कह दिया गया कि इसने ख़ुद अपने दुपट्टे के साथ अपने आप को हैंग किया, और ये हुआ है डिफेंस के एरिया में। तो कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है हमारी सोसाइटी में। क्या अमीर और ताकतवर लोग बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, किसी किस्म का जुल्म कर सकते हैं, और किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती, किसी एक बंदे को पनिशमेंट नहीं मिलती। इतने बच्चे मर जाते हैं, कितने और को हमने मारना है इससे पहले कि हमारी कौम जागे कि हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर जनरेशन है। Ali Shikani sir, I would come to you. The thing is, everybody aspire to achieve what you have already achieved, and probably hardly 0.something% amongst the people sitting over here and people who know you might be able to achieve what you have already achieved in terms of like your business, an empire which you have constructed and built for yourself. तो वहाँ से उस पॉइंट से उस सक्सेस पे पॉइंट पे पहुँचने के बाद जब इंसान बहुत ज़्यादा एलियनेट हो जाता है सोसाइटी से, ऊपर चला जाता है, हाउ डिड यू फाइंड योर सेल्फ कनेक्टेड स्टिल विद दिस पीपल, एंड व्हाट वाज द पॉइंट of initiation in your heart and your mind and your personality which compelled you to come and work for the underprivileged people of Pakistan specifically? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ऐसे तो बहुत ऐसी चीज़ें जिसमें बात कर सकता हूँ, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट। हम अनफॉर्चुनेटली उस माशरे में रहते हैं जिस माशरे के अंदर मिडिल क्लास नहीं है, जिस माशरे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर आपका मिडिल क्लास होता है, आपका पुअर होता है, रिच होता है, वेल्थी होता है, राइट। हम उस माशरे में रहते हैं जिसके अंदर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में आज कैटेगरी है कि लोअर मिडिल क्लास, उससे नीचे गरीब, लाइक भिखारी तक के उस लेवल में रह गए। हमारे पास कुछ मिडिल क्लास नहीं बचा है। हम अगर किसी से पूछें कि आप मिडिल क्लास को कैसे डिफाइन करते हो, तो मेरे ख्याल से जिसके पास 2 करोड़ का यहाँ पर घर है वो मिडिल क्लास है, और जिसके पास अपना घर नहीं है वो भी मिडिल क्लास नहीं है। हम उस माशरे में रहते हैं कि जिसके अंदर अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। अमीर का बच्चा अगर कुछ करता है तो शरारती है, और अगर गरीब का बच्चा कुछ करता है तो बदतमीज़ है। ये पैसों का जो इशू है अमीर और गरीब के बीच में, उस फ़र्क को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। वहाँ पर मुझे 20 साल हो गए, मैं कराची के अंदर पैदा हुआ हूँ, मेरा आना जाना रहता है, लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा मेरे मुल्क ने याद दिलाई है, और शायद वो कहते हैं ना कि मोटिवेट कैसे हो, तो मेरे ख्याल से जब मैं पाकिस्तान आया हूँ मैं और मोटिवेट हुआ हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत झुककर, मैं बहुत सर झुका कर ये बात कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास स्टेटस नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर आप गरीब हैं तो आपकी बाहर तो छोड़ो, घर में भी कोई आपकी नहीं सुनेगा, और अगर आपके पास पैसा है तो आपकी सब बात, आपकी गलत भी सही है, आपके फजूल के जोक भी बहुत अच्छे हैं, आप कुछ भी बोलें वो सब सही है, क्योंकि आपके पास स्टेटस है, आपके पास पैसा है। तो उस कल्चर को कहीं ना कहीं फिक्स करने के लिए मैं कुछ टाइम से JDC के साथ काम कर रहा हूँ कि कम से कम लोगों को एजुकेट तो किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे जो बड़ा इशू इस टाइम पे कि मुल्क छोड़ दो, लेकिन अगर हमारे सब लोग ही मुल्क छोड़ देंगे तो मुल्क चलाएगा कौन? तो कल्चर को चेंज करना, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ये बहुत ही एक अहम बात है हमारे लिए कि पाकिस्तान से लोग चले जाते हैं और फिर अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, काइंड ऑफ बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते हैं। और एक हमने जो हम होप कर रहे हैं कि ऐसा हो, क्योंकि ज़ाहिर है अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी देखा देखी मेरे ख्याल से अब और लोग भी जो ख़ास करके बाहर
जिनके पास अल्लाह ने जिनको बहुत नवाजा है, कामयाबी अता की है, वो अपने होम कंट्री की तरफ देख रहे हैं कि अंडर प्रिविलेज कंट्री को। तो इस हवाले से इसी पॉइंट को अगर मैं आगे लेके जाऊं ज़फ़र साहब, क्योंकि आपके पास पूरी दुनिया से लोग डोनर्स हैं और आते हैं, तो इस हवाले से ये जो शेखानी साहब का एक इम्पैक्ट है, ज़ाहिर है इनको क्या कहें कि इनके देखा देखी लोगों के ख्याल और भी लोगों के जहन में आएगा, उसका कोई इम्पैक्ट आपके पास आया पिछले 1 साल के अंदर जब से ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हुई है कि बाहर से लोग आके और यहाँ पे, क्योंकि एक तो मुझे जहन में अभी कनाडा से भी एक टीम आई हुई थी, उसके अंदर एक मेरा भी एक पुराना बचपन का दोस्त है अहमद फारूकी, वो आपके साथ आया हुआ था, वो वहाँ पे आपके जो मुर्दा खाना था उसके ऊपर वो कुछ उन्होंने कोई डोनेशन भी दिया, वीडियो तबीयत भी खराब हो वो गई, कनाडा वाले जो अहमद फारूकी वो मेरे बचपन के दोस्तों में से, तो मैंने उनको वहीं पे देखा आपको कि वो भी कम्युनिटी आई है। तो जो बाहर से जो वापस अब अमेरिका वाले जो और दूसरी दुनिया में जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं वापस पाकिस्तान में, उनके बारे में ज़रा बताइए कि वो कितना देखिए उनके लिए सबसे पहले समझने के लिए ज़रूरी है कि उनकी यहाँ ज़रूरत क्यों है। मैटर ये है कि देखें, जब आप कोई फलाई इदारा फलाई इदारे 2 तरह के होते हैं। एक फलाई इदारा ये है कि मैं मॉर्निंग शो में आऊँ, हर प्रोड्यूसर का महीना बांध दूँ टीवी चैनलों पे कि भाई आपको मैं 2 लाख दूंगा, कोई जले, कोई अगवा हो जाए, किसी का बच्चा रोड से मिले, मैं हूँ, आपका शादी का सीज़न आएगा, मैं आऊँगा, शादियाँ कराऊँगा, माइयों भी कराऊँगा, मेहंदी भी कराऊँगा, रोज़ाना नई गरीब लड़की जो बेचारी घर से भागी, कुछ भी, या बच्चे बांटने की बात होगी तो मैं हूँगा, बच्चा लाऊँगा, किसको गिफ्ट देना है, पूरा सेगमेंट निकाल दूंगा। एक ही एनजीओ ये है। एक एनजीओ वो है कि हर महीने हर डायलिसिस सेंटर, देखें हर सेंटर पे जब तक कोई गुर्दे का मरीज़ जिंदा है, अगर आपने डायलिसिस सेंटर खोला है तो उसको 48 घंटे में 4 घंटे मशीन पे गुजार रहे हैं। जिस दिन वो कब्र में जाएगा उस दिन बेड खाली होगा, नया मरीज़ आएगा। 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज़ हैं कराची में, टोटल पूरे पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज़ हैं, और अगर इनका ट्रांसप्लांट हो जाए तो डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं है। अब सारे अस्पताल कराची के मिल के जो डायलिसिस करते हैं वो 25,000 20,000 डायलिसिस, वो ट्रांसप्लांट तो होना चाहिए ना। अगर ट्रांसप्लांट की बात करो तो 30 ट्रांसप्लांट है, यानी 30 वो लोग हैं जिनकी मशीन से जान छूटेगी। बाकी तुम अरबपति बाप के बेटे हो या तुम फ़कीर हो, हर 44 घंटे पूरे होने के बाद मशीन पर लेट जाओ। सरकारी अस्पताल जा रहे हैं 2 घंटे का डायलिसिस, वो कह रहे हैं पूरे 3 सूबों के मरीज सड़क पे सो रहे हैं, होटल नहीं ले सकते क्योंकि हर एक दिन बाद होना है। तो अब जो हमारी जैसी एनजीओ हैं, हर डायलिसिस सेंटर का 2.25 करोड़ रुपए खर्चा है 600 डायलिसिस का। ये कितनी मशीनों पे बता रहे हैं आप? एक ये सेंटर में 5 मशीनें, 600 डायलिसिस एक सेंटर। एक सेंटर महीने में 600 डायलिसिस करता है हमारा। साइकिल्स होते हैं। हाँ, और हमारे इस वक्त कराची में 11 बन चुके हैं, सियालकोट में। तो अब 12 सेंटरों का 2.25 करोड़ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके सामने एक फिगर आएगा कि 17 करोड़ रुपए तो सिर्फ साइट पे कर दो एक महीने के। ये सिर्फ डायलिसिस के हैं। फिर उसके बाद लैब की बात आएगी कि भाई लैब जो चल रही है इसका हर महीने का $5 लाख या $6 लाख की किट आ रही है, वो अलग फिक्स है। फिर O लेवल का स्कूल पाकिस्तान में पहला फ्री हमने बनाया, उसका हर महीने का खर्चा है 60 लाख रुपए। टीचर सारे बीकन हाउस के हैं, प्रिंसिपल बीकन हाउस की है, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर 5 स्टार होटल का। तो अगर हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स देखें, इसके साथ लोगों के मसाइल, रोजाना जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, शादी ब्याह, घर का रेंट, बिजली कट गई है, शौहर रेंट पे पड़ा हुआ है, जुल्म हो रहा है, वकील चाहिए, तो महीने के 35-40 करोड़ रुपए करने हैं। 35 करोड़ रुपए में अगर पाकिस्तान में ये जितने क्लास पढ़े लिखे बच्चे बैठे इनको बोलूँ जाओ जरा जमा करके लाओ, तुम्हारे कौन से सीनियर किस कंपनी में CSR के हेड हैं, कोई मरहूम कोई ऐसा शख्स है जो अपनी प्रॉपर्टी देना चाह रहा है, सब कुछ करने के बाद जब हम एक फिगर निकालेंगे 6 दिन बाद तो वो बनेगा 9 लाख रुपए। मैं बात कर रहा हूँ 30 करोड़ की। आप समझें, रमज़ान का चांद जब होता है हर साल JDC के खिलाफ एक कैंपेन शुरू होती है। मुझे पता है सियासी पार्टियां नहीं कर रही होती, सारा पैसा फलाई इदारों का होता है। क्यों मेहनत करते हैं मुझे पता है। मुझे ये फिक्स पैसा हर महीने चाहिए, एक ये एनजीओ है। अब मैं किसी पाकिस्तानी डोनर के पास जाके बोलता हूँ ना यार मेरा महीने का खर्चा 30 करोड़ है, वो यूँ खड़ा होता है, बोलता है मैं अपनी फैक्ट्री ना खोल लूँ। तो हम डायरेक्ट लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए काम कर रहे हैं कि भाई इसको जिंदा रखना है, स्टेट की जिम्मेदारी थी, सही है, कमी बेशी हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ये बात करता हूँ अली शेखानी साहब से, तो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, यार अली भाई $1 मिलियन तो ऑनलाइन कर दो यार, समझिए। $1 मिलियन इनके लिए क्या है, जैसा मेरे और आपके लिए $1 मिलियन रुपए, इनका रुपया हमारे 280 रुपए, इनका पाउंड हमारे 350 रुपए। तो मैंने इनको क्या बोला, अली भाई यार $1 मिलियन ऑनलाइन कर दो यार, तनख्वाह के पैसे या इस महीने के खराज। जिंदगी हमारी पूरी उम्मीद सब कुछ जो है, हम जो भी इदारा इस वक्त रन कर रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, जब से पाकिस्तान में इक्तसादी बदहाली आई है कोविड के बाद से, लोकल डोनेशन नहीं है। हम बैंक ऑफ अमेरिका में हमारा अकाउंट है, हम पेपॉल, हम इसी पे चल रहे हैं। हम इनको क्यों, अब देखें मैं आप अली शेखानी साहब जिस दिन पाकिस्तान उतरते हैं
इनका मार्केटिंग मैनेजर कौन होता है? जफर अब्बास। क्यों? मैं इनको प्रमोट करूंगा, मैं इनको प्रोपेगेट करूंगा, मैं इनको जेडीसी का ह्यूस्टन का हेड बना के वहां भेजूंगा। भाई ये पहले ही वहां की लीडिंग चौथे नंबर के बिजनेसमैन है, अमीर तरीन आदमी हैं, इनके लाखों मिलियन डॉलर के एसेट्स हैं। तो अगर ये मेरे साथ जुड़ेंगे और उससे पाकिस्तानियों के मसाइल हल हो रहे हैं, उनके नसीब बेहतर हो रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? ये मैंने आपको डॉलर की पूरी फिल्म बता दी, कितनी जरूरी है इनका साथ। थैंक यू। और ये मेरे ख्याल से जो लोग यहाँ पे बैठे हुए सीनियर और कुछ स्टूडेंट्स भी, तो इनके लिए, सीनियर्स को तो खैर पता है, स्टूडेंट्स के लिए बता दूं मैं कि ये जो जिस डायरेक्शन में बात जा रही है ना, कि ये जो जिसे कहेंगे कि एक्सपेट्रियट पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी बॉर्न वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान है, इन्होंने डोनेशन के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी पिछले 4-5-6 साल का एक बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट आया। पहले उनका इतना कनेक्ट नहीं था, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट था, और उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोकल, मैं एधी फाउंडेशन से भी बड़ा हमारा लिंक रहा है, और वो भी बताते हैं, फैसल एधी, तो वो भी यही बताते हैं कि किस तरीके से बाहर से हमें डोनेशन आती है, और बाहर से जो डोनेशन आती है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वहाँ से वही वाली बात है कि यहाँ पे किसी ने 1 लाख रुपए दिए और वहाँ से किसी ने 1 लाख डॉलर दिए, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। जी, एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, मैंने अभी सैलाब में, कोविड में क्या ऐलान किया? मैंने कहा रोज़ाना 35,000 बोरे राशन ले लो। तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने मुझे फ़ोन करके ये नहीं बोला कि जफ़र हमारा ये हिस्सा है, वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन शुरू कर दी उसने कि 900 रुपये का आटे का बोरा, 3 तेल की थैलियाँ, 2 किलो दाल, 2 किलो चावल, 1 बोरा इतने का पड़ रहा है, 35,000 बोरे, यानी कि ये डेली 30 करोड़ रुपए का राशन दे रहा है। कहाँ से आ रहा है? चलो जी, अब इसका जवाब दो। हम जिस डोनर के पास जा रहे हैं हमसे ये सवाल कर रहे हैं कहाँ से आ रहा है। हमने उनैद लाखानी साहब के साथ मिलकर फ्री कोविड अस्पताल खोल दिया। 14 दिन के 22 लाख मांग रहे थे सारे अस्पताल। हमने वेंटिलेटर, बाई पाइप, सी पाइप, नेगेटिव प्रेशर प्लांट, एक मतलब हिस्ट्री। ये जो कुछ भी हो रहा है, अभी जैसे सैलाब आया, मैंने कहा भाई 50,000 बोरे हमने रेंजर्स को दिए, 50,000 एयरफोर्स को दिए, 25,000 नेवी को दिए, सिंध पुलिस को दिए, और आर्मी के थ्रू 89,000 मछुआरे, सब बाहर। जितना अमेरिका में बैठा पाकिस्तानी है, सबसे लीडिंग जो मुल्क है जो सपोर्ट। देखें, अभी सिर्फ ये एक जर्नल विजिट पे आए थे, इनको 2 चीज़ों का इफ्तिताह करना था। मैंने कहा अली भाई, कैंसर के अस्पताल के लिए ये जगह पसंद की, नुमाइश औरंगी पे इतने मिलियन की है, इतने करोड़ रुपए की है। आप यकीन करें, अगले दिन उन्होंने पेमेंट दिया, जगह ले ली। अब मशीनों पे बात हो रही है, अरबों रुपए की मशीन है, लोकल डोनेशन नहीं है, और बहुत नामुमकिन है इस वक्त। ये लोग तो सरमाया है हमारे लिए, ऐसी जिंदगी है। अली शेखानी साहब, आई वुड एक्सटेंड दिस सेम पॉइंट विद यू कि यहाँ पे तो आप इंडिविजुअली आते हैं अमेरिका से और काम करते हैं, आप यकीनन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी से वहाँ भी लिंक में होंगे, और आपके बिजनेस के एसोसिएट भी होंगे, और आपके बिजनेस पार्टनर्स भी, और आपके राइवल्स भी हो सकते हैं पाकिस्तानी कुछ बिजनेसमैन। तो क्या वहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह की कोई काम शुरू कर रहे हैं कि कोई आप ग्रुप बनाएं, और ग्रुप बना के, मतलब आप अकेले तो आ ही रहे हैं, कर रहे हैं, उसके अलावा लोगों को इंगेज कर रहे हैं कि भाई आप भी चलें, आप भी चलें, कुछ इस तरह का एफर्ट हो रहा है वहाँ पे पाकिस्तान के इस CSR के हवाले से? जैसे मैं टेक्सास में रहता हूँ, और वहाँ पर मेरी एक फाउंडेशन है वेरी वालदा महरूमा के नाम पे, शमीम शेखानी फाउंडेशन। तो शमीम शेखानी फाउंडेशन तो ऑलरेडी काम कर रही है। अब मैं आपको इसकी एक पॉइंट बताता हूँ, जो सफ़र भाई ने कहा उसको मैं पूरा इसको अगर समराइज़ किया जाए, अमेरिका के जो लोग हैं उनको हमारी पाकिस्तानी लोग, हम ही लोग परेशान करते हैं। पूछता हूँ कैसे? सबसे बड़ा जो इस मुल्क के अंदर बहुत माज़रत के साथ तकलीफ़ है, फ़िरकाबंदी का। मैं किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ नहीं, मैं किसी के साथ नहीं, मैं सिर्फ इंसानियत के साथ हूँ। दैट्स माई होल गोल। ह्यूमैनिटी, आपकी इंसानियत, यही से जस्ट एन एग्जाम्पल। आप सब यहाँ पर बैठे हैं, आप में से शायद कल कोई डॉक्टर बनेगा, कल कोई पुलिस वाला बन सकता है, जो जो अलग अलग चीज़ें। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाला मैं शौक से हूँ अमेरिका के अंदर। जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे सामने कोई आता है और वो बहुत तकलीफ़ के अंदर, उसको ज़रूरत है, क्या मैं उससे पूछूंगा कि तुम गोरे हो, काले हो, शिया हो, सुन्नी हो, इस्माइली हो, सिंध से हो, पंजाब से हो, बलूचिस्तान से हो, KP कैसे हो? ये पूछूंगा? नहीं पूछूंगा, मैं उसकी काम आने की कोशिश करूंगा, राइट? तो वहाँ पर जस्ट एन एग्जाम्पल। अब JDC की एक बात है, JDC को हम लोग 10 लोग ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, राइट? तो उन्होंने कहा कि यार JDC को क्यों देना है, और जफ़र तो शिया है,
क्या सैलानी को क्यों देना है, वो तो सिर्फ सुन्नी की बात करता है। हम इस्माइली को उसकी ज़रूरत नहीं है, आगा खान कम्युनिटी तो खुद स्ट्रॉन्ग है, बोरी कम्युनिटी खुद स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसी तरीके से हमारे साथ धोखा भी हुआ है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत सी हज़ारों NGOs हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका जो कल आती हैं परसों चली जाती हैं, लाख 2 लाख डॉलर कमा लेती हैं अमेरिका और वो थक जाते हैं। तो जब मेरा यहाँ पर JDC से मिलना हुआ, तो जब मैंने वहाँ जाकर समझाया कि JDC फाउंडेशन ज़फ़र अब्बास, JDC फाउंडेशन है, JDC फाउंडेशन ज़फ़र अब्बास है, जब मैंने हल्फिया कहा कि मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर कोई शिया सुन्नी इस्माइली वगैरह कुछ हो, तो अब जाकर जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के टॉप लीडिंग बिजनेसमैन हैं, वो लोग ने कहा कि क्यों ना ज़फ़र भाई को हम यहाँ पर अमेरिका बुलाकर एक फंड रेजिंग की जाए। फिर ज़फ़र भाई को लेटर दिया, ज़फ़र भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अमेरिका भी आ रहे हैं, तो हम मिलकर JDC फाउंडेशन के साथ मिलकर कैंसर हॉस्पिटल के लिए और डायलिसिस सेंटर के लिए बहुत काम करेंगे। मैडम, मैं आपसे आप ये पूछना चाहेंगे हम कि आपका जो सेव आवर चिल्ड्रन का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे और भी ऐसे इदारे हैं कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं जो कि अपने तौर पे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, किताबें अरेंज करके दे रहे होते हैं। तो आपने अभी पहली गुफ्तगू में पहले से में आपने बताया कि इसका इम्पैक्ट कितना है उनकी ज़िंदगी में, कि उनके साथ जो एक्सप्लोरेशंस हो रही है। तो अभी आपका क्या फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बताएं कि इसका एक्सपेंशन का आपका कितना इरादा है और आप इसको कहाँ कहाँ, और क्योंकि कराची, जाहिर है अब मैं कराची की बात करता हूँ तो मेरा क्योंकि PhD कराची की डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन पे है, तो ये जुमला सुन के लोगों को यकीन नहीं आता कि कराची शहर की आबादी यूरोप के तकरीबन 70% ममालिक से ज़्यादा है इंडिविजुअली। पुर्तगाल की आबादी हमसे कम है, स्वीडन की आबादी हमसे कम है, नॉर्वे की आबादी हमसे कम है, पोलैंड की आबादी हमसे कम है। इतने सारे ममालिक हैं जिनकी आबादी हमसे कम है, शहर से, मुल्क की बात नहीं कर रहा मैं। वहाँ पे सबसे बड़ी आबादी है वो है जर्मनी, जो 8 करोड़ है। इंग्लैंड की आबादी 5.5 करोड़ है, हम 3 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं शहर। तो इस कदर हम क्लस्टर्ड हैं, तो इसके हवाले से जाहिर है बच्चे एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि कोलेटरल डैमेज होते हैं, जिनका नुकसान बहुत हो रहा हो। तो आप उसके ऊपर काम करें, तो उसमें एक्सपेंशन के हवाले से जरा कुछ बताएं। देखिए, कराची अगर आप सिंध लें तो 7 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 15। ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। तो आप सोचें कि जो ये डॉक्यूमेंटेड है, तो आप सोचें कि ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, इनकी कल फ्यूचर क्या होगी, व्हाट इज़ द होप। और मेरे ख्याल में एक हमारा जो मीडिया है, दे फॉल शॉर्ट, इसलिए क्योंकि बहुत लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं इस तरह के कामों को दिखाते हैं और इसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। क्यों नहीं हमारी मीडिया बताती है ये गलत है, ये सही है। क्यों नहीं हमारी मीडिया अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बताती है कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं। आप अगर जैसे किडनी हॉस्पिटल है, तो शायद मुझे नहीं मालूम कि कहाँ कहाँ जाके फ्री इलाज लोगों का हो सकता है। ये हमारी मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत सारे मीडिया स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनके साथ मैंने भी बहुत काम किया। इन्होंने मेरे लिए छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसके अंदर ये प्रमोट किया कि इससे बेहतर है कि आप किसी बच्चे को खाना दे दें, इससे बेहतर है कि आप उनको कोई हुनर सिखा दें, क्योंकि जब आप उनको हुनर सिखाते हैं तो उनकी फ्यूचर आप बनाते हैं। और वैसे तो बहुत सारे हैं सैलानी और डिफरेंट इदारे हैं जो दे रहे होते हैं खाना, बट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक मीडिया, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है वोकेशनल ट्रेनिंग्स। और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जो हमारे बच्चे हैं ये मैट्रिक नहीं कर पाएंगे, ये 8th क्लास का भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। इनको उस्ताद शागिर्द के उसके अंदर दायरे में डाल के हमारे बच्चे अब सीख रहे हैं। 6 साल से पढ़ रहे थे, अब बड़े हो गए हैं, तो अब सीख रहे हैं। टेलरिंग सीख रहे हैं, प्लम्बिंग सीख रहे हैं, मोटर मैकेनिक सीख रहे हैं, और इलेक्ट्रिशियन कोई बन रहे हैं, कोई हेयर स्टाइलिस्ट बन रहे हैं। दिस इज़ ऑल टू डू विथ उस्ताद शागिर्द। और इनका फ्यूचर हमारी
जनरेशन का फ्यूचर सिर्फ इसमें है कि इनको हुनर दिया जाए, इनको सिखाया जाए। हमने इनको पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी वक्त है, कोई भी उम्र में आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। एक राउंड में सवाल का करूंगा आप तीनों से, उसके बाद फिर विल गो टू द ऑडियंस, ताकि लोगों की पार्टिसिपेशन भी हो जाए। आई होप आई कैन सेंस के मेनी पीपल हैव मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू। एक चीज़ थोड़ी सी अब मेरे ख्याल से करनी चाहिए, पूछनी चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है ख़ास करके पाकिस्तानी माशरे के अंदर, और हम सुनते भी रहते हैं। अब डायरेक्ट अब आप लोगों से पूछते हैं कि मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ कि सवाल ये है कि आप लोगों को अपना काम करने में माशरे की तरफ से जो मुश्किलात आती हैं उसका तो इन्होंने कुछ तस्करा कर दिया, आपने भी कर दिया। हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से जो मुश्किलात आती हैं मेरे ख्याल से उसके पे भी हमें बात करनी चाहिए, ताकि हम ये इसको, अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे फैसल ईदी ने मुझे बताया खुद, उन्होंने कहा कि सैलाब के दिनों में उन्होंने कोशिश की कि कश्तियाँ मंगवा लें, तो कश्तियों के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई कश्तियाँ आएंगी तो हम लोगों को पहुँचाएंगे खाना, और वो तो टैक्स बढ़ा दिया कम करने के बजाय। ये मारे फिरते रहे कि भाई टैक्स कम कर दें, हम अपने पैसों से कश्तियाँ मंगवा रहे हैं सैलाब के लोगों को सिर्फ बचाने के लिए, गवर्नमेंट का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सिर्फ आप उस पर टैक्स माफ़ कर दीजिए। 200, 300, 150% जो टैक्स है। एक बात है कि 50 लाख की कश्ती अगर आ रही है, 40 लाख की कश्ती आ रही है, तो 40 लाख की कश्ती यहाँ पे टैक्स देने के बाद वो करोड़ से ऊपर की बढ़ेगी। तो जो डोनर है, डोनर के पैसों से 40 लाख की कश्ती तो समझ में आ गई, लेकिन उस 40 लाख की कश्ती के ऊपर 60 लाख या 50 लाख या 80 लाख रुपए टैक्स भी दो, तो कम से कम गवर्नमेंट खुद नहीं प्रोवाइड करी तो कम से कम जो कर रहा है उसको आसानी तो प्रोवाइड कर दे। तो इस हवाले से जो मुश्किलात आपको पेश आई हैं, और शिखानी साहब आप अगर वहाँ से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो 1 बाय 1 हम वहाँ से चलते हैं, राउंड शुरू करते हैं। आपने वाकया बोला, मैं सानेहा सुना देता हूँ। हमने सिंध गवर्नमेंट को लेटर लिखा, इंटर्म गवर्नमेंट थी, कि हम एक मामले में कूदे कि जो खून के टेस्ट हो रहे हैं, इससे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो 30-30 हज़ार गुना ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। एक कैंसर का मरीज़ है, उसको और 15 दिन बाद टेस्ट कराना है, वो सिर्फ टेस्ट के पैसों में दे रहा है। अभी मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। एक साहब हैं जाहिद बुखारी साहब, वो अभी CTD में थे, FIA में डायरेक्टर भी थे, वहाँ से रिटायर हुए, तो हमने उनको अपने यहाँ एक पोस्ट दी है एडमिनिस्ट्रेटर की उस पर। तो उनका एक ही बेटा था, तो वो ब्लड कैंसर में, IBA का स्टूडेंट था गलबन, तो वो ब्लड कैंसर में मर गया। तो मैंने बोला उसके इलाज पर कितना पैसा लगा जाहिद साहब? उन्होंने कहा तकरीबन 89 लाख रुपीज़। मैंने कहा इसमें लैब टेस्ट की कॉस्ट कितनी थी? इन्होंने कहा 90%। मैंने कितने के मखरूज हो? कहने लगे 69 लाख के। तो जब आप 70 लाख रुपए लैब टेस्ट के ले रहे हैं, तो मैंने बताया सर इसके अंदर हज़ारों गुना प्रॉफिट है। मैंने सिंध गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि हम 2 मरहलों में, पहले मरहले में लोअर सिंध और कराची में 9 फ्री लैब, और बदीन, हैदराबाद, ठट्टा, हम पूरे सिंध को खून का टेस्ट फ्री कर देंगे, और वो मशीन लगाएंगे जिसमें इंसानी हाथ का मल दखल नहीं है। रिपोर्ट इंसान के खून का टेस्ट करके, और 2 मिनट में वो टेस्ट की रिपोर्ट जो 8 दिन में आती है आपके मोबाइल पे भेज देगा, छुट्टी। अब जी एक वजीर साहब आते हैं, अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैबिनेट इजलास में हमारा वो प्रपोजल चला गया, लोग खुश कि ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में। तो वो आके हमारा वो प्रपोजल हाथ में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं जी हम महीने का 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं, हमारा सिर्फ 70 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। ये एक लैब के JDC ने 2.25 अरब रुपए मांग लिए। हम भी परेशान, हमने तो मांगे ही नहीं है। हमने तो लिखा है कि 18 लैबों के लिए पर लैब 1 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट हमें दे दे, बाकी उस लैब पे 20 करोड़ भी खर्चा आएगा महीने का, हम अपने डोनर से लाएंगे। और हमने तो ये लिखा है कि 9 शहर उधर और 9 इलाके इधर, टोटल 18 सेंटर बनेंगे। ये कह रहा है 1। हमने लेटर में लिखा है पर डे 1 लाख टेस्ट, ये कह रहा है हम पूरे महीने में 1 लाख टेस्ट करते हैं, उसकी ये कॉस्ट है। तो बात ये कि हमारे उस प्रोजेक्ट को सिर्फ रोकने के लिए नामी ग्रामी वुज़रा उतरे मैदान में। फिर जब हमने चेक किया तो मालूम हुआ कि फ़लाँ साहब ने फ़लाँ होटल डिफेंस में ख़रीदा है डॉक्टर प्लाजा बनाने के लिए, तो जितनी लैब्स आती हैं उसमें फ़लाँ साहब का कितना % होता है, फ़लाँ कैंसर की मशीन में जो पूरे पाकिस्तान, ये सिस्टम है इस मुल्क में, दवाइयाँ और मेडिसिन लैब, ये पूरा एक सिस्टम है, इसमें कहीं भी कुछ भी करें, कुछ मखसूस लोग हैं उनको सारा पैसा जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं ना, मैंने अपने अब्बा की खून के टेस्ट करने के लिए मशीनें ला रहा था पाकिस्तान, लेकिन मैं इसके खिलाफ रोड पे उतरा। मैंने 16 अरब रुपए की मशीनें लगा दी, अभी स्नाइब एक और मंगवा दी पाकिस्तान में। अब हम एक दिन का सिर्फ नुमाइश चौरंगी पे 1 लाख टेस्ट कर रहे हैं, 1 रुपया लिए बगैर। तो बात ये, और कमाल देखें,
इधर वो साहब ये झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उधर एक तंजीम उनके बैकअप पे खड़ी हो जाती है, वो झूठे नैरेटिव को फैलाती है। और इधर जो अच्छा इस वक्त आज सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है कि आप मुझसे बोलेंगे आपको पाकिस्तान के फला फला पेज पे अपनी डिटेल्स चाहिए, उसका पैसा है, आपको पता है सब पेड होता है, तो एक नैरेटिव झूठा बिल्ड किया जाता है। फिर मालूम हुआ ये मिलियंस ऑफ रुपीस कौन खर्च कर रहा है हमारे खिलाफ, तो मालूम हुआ जी ये इदारे पैसा खर्च करते हैं कि भाई सैलाब का पैसा आता है। मुझे रोका गया है, मैं जब सैलाब में एक एक दिन में 2-2 लाख बोरे राशन बांट रहा था, मुझे मैसेज दिए गए कि पागल हो, ऐसे एनजीओ चलती है, कल कैसे चलाओगे इदारा, ये पैसा बैंक में रखवाओ, बैंक 25% दे रहा है साल का, यानी अगर मैं 10 अरब रुपए बैंक को दूंगा तो बैंक मुझे सालाना 2.5 अरब रुपए प्रॉफिट देगा, महाना मुझे 25 करोड़ रुपए देगा, इससे वेलफेयर करो। तो मैंने कहा वो जो भूखे के लिए पैसा आया वो तो मर जाएगा, 1 साल कैसे वेट करेगा, यही कोविड में हुआ। टेक्निकल इशू भी लोगों ने ज़कात का जो तो उसी साल निकालना है वो। सर आप समझे ना, 10 साल तक ज़कात रख के नहीं बैठूंगा लोगों सर आप, मैं कर नहीं सकता ना, मैंने आपको पैसा दिया कि ये शख्स मर रहा है इसको दवाई दिला दो, आप बोलोगे नहीं मैं इन्वेस्ट करूंगा, कैसे कर सकते हो आप। यही प्रॉब्लम मेरे साथ रमजान में हुई, हम 10 सालों से शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं यार, आप ये सेठ है कह रहा है अच्छा खाना खिलाओ गरीब को, ये कैंपेन चला रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं दाल खिलाओ, पैसा इसका, ये कह रहा है मेरे बच्चे खाते हैं खिलाओ, मैंने स्टैंड लिया। आप सोचें एक एक दिन में एक एक सियासी तंजीम की 40,000 आईडीज, इदारों की रिपोर्ट है, से कैंपेन चली। फिर मैंने 2 रमज़ान को एक छोटी सी वीडियो डाली, मैंने कहा आप देख लेना ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ना इनको नफरत शुतुरमुर्ग से, ये सिर्फ इदारे की साख डैमेज करने के लिए हंसी मजाक कर रहे हैं, और बेसिकली इदारा नहीं खिला रहा, सेठ खिला रहा है। तो सारे लोग पीछे लग गए, सेठ 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 सेठ। मैंने कम से कम कहा इदारे को तो तुम थोड़ा फ्री एंड दो, तो यहाँ तो बड़े गेम है भाई, इदारा चलाना आसान नहीं। द सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू अली शकानी साहब के आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिच या कोई ऐसी चीज़ आती है कि भाई आप उधर नहीं हमारे इदारों को दें, इधर करें, और कोई प्रॉब्लम को पैसे ट्रांसफ़र करने में कोई इशू आते हो? अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी गवर्नमेंट पिछले 70 सालों से इस्टेब्लिश नहीं हो सकी है, इन अ सेंस कि हमारी एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी जाती है, तीसरी जाती है, चौथी जाती है। सो फार मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन एक इंडिविजुअल बंदा जो गवर्नमेंट का होता है और अगर वो गलत कुछ बात कहता है तो एज अ कम्युनिटी हम बोलते हैं गवर्नमेंट ने बोला है, पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने नहीं बोला होता, एक इंडिविजुअल बंदे ने बोला होता है। तो आई थिंक उसको अगेन उसको एजुकेट करने की जरूरत है, दैट्स ऑल। दैट्स वेरी ट्रू कि वो इनके खिलाफ भी जो ये बता रहे हैं कोई एक आदमी ने किया, वो बिल्कुल आप जस्ट एन एग्जांपल। नहीं मेरे साथ जो किया वो एक वजीर ने किया। अच्छा एक मतलब इंडिविजुअल एक आदमी है ना वो, ना मतलब गवर्नमेंट से बना से पूरी हुकूमत तो हाँ, नहीं। लेकिन जब एक वजीर की वजह से वो चीज़ कैबिनेट रोक देगी तो हुकूमत ने रोका ना, फिर उसको एक वजीर के कहने, वो एक अलग केस था, वो दूसरा जो ये कह रहे हैं वो अलग बात करें। और मैं एक और बात अभी कहना भूल गया, मैडम ने जो बात की ना बच्चों की, हम भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ा काम ये कर रही हैं, लेकिन इस मुल्क में एक और क़यामत आ चुकी है इस वक्त, क्योंकि हम फलाही इदारा चला रहे हैं। बेशक ज़रूरी है, हमने बच्चों को ये जो काम कर रही हैं उससे बच्चा 100 रुपये के लिए गलत काम नहीं करवाएगा और दीगर महफूज रहेगा बीमारियों से, और हज़ार बहुत बड़े चैप्टर है, बहुत अच्छा काम करें। लेकिन एक बहुत बड़ी क़यामत एक और आ गई, हम फलाही इदारा चला रहे हैं, हमारे पास दिन की 10,000 एप्लीकेशन है वो हैं सो पाकिस्तान से कि मेरे बच्चे की 7 महीने की फ़ीस जमा नहीं हुई है। अगर मैंने अगले महीने नहीं दी, टीचर ने आज मेरे बच्चे को क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा किया, बेटी बहुत रोई है, वैन के पैसे 7 महीने के नहीं दिए, तो वैन तो अब हम खुद छोड़ने जा रहे हैं पैदल। तो बात यह कि अगर हमारी हुकूमत ने इधर तवज्जो नहीं दी तो इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात ऐसे हैं कि लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूलों से घरों में आ जाएंगे। और अगर कोई ये समझ रहा है कि इन प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो 8वीं क्लास तक या 7वीं 6वीं तक पढ़ा उसको सरकारी में डालेंगे और पढ़ लेगा, नहीं पढ़ सकता। सरकारी में तो खैर वैसे भी जो पढ़ रहे हैं वो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे। नहीं सर, सिस्टम चेंज है ना। देखें उसको टेबल याद है 2 × 2। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है बच्चे उनके लिए जगह नहीं है, खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है, वो बैठ ही नहीं सकते वहाँ सर। खिड़की, दरवाजे, पंखे, अभी हमने 2 स्कूल गोद लिए थे गवर्नमेंट के, सिर्फ उनकी शक्ल निकालने में 70 मिलियन रुपीस लगे कि कम से कम वो हॉररेबल जगह जो है वो उसकी मैं लुक तो निकालूं, तो टाइल, मार्बल, सरिये जो निकले थे उनको अंदर करवाना, दरवाजे, खिड़कियां, चौखट, हर क्लास में एसी, तो ये उसकी तरफ भी तवज्जो। मैडम बस आप इसमें अपना कमेंट देते हैं, फिर देन जी हमारा कोई क्वेश्चन लेने के लिए कोई है माइक यहाँ पे? ठीक है, बस ये मैडम के बाद फिर हम, मेरे 2-3 एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। आपकी जो मुश्किलात आई हैं। जी हाँ, बिकॉज एक मुश्किलात ये है कि हमारा जो सिंध गवर्नमेंट है
मेरे ख्याल में कोई पॉलिसी है जिसके अंदर आप बच्चों को गैर तालीम याफ्ता रखें, क्योंकि एक छोटा सा मुझे जब स्कूल दिया गया उसके अंदर कोई वॉशरूम नहीं था। मैंने बहुत सारे ख़त लिखे, इजाज़त ली कि मैं वॉशरूम बनाऊं, लेकिन मुझे वो इजाज़त नहीं मिली। जब मैंने वॉशरूम बना लिया फिर लोग आए कहने के लिए कि आपने ये वॉशरूम क्यों बनाया। खैर उसके लिए फिर हमने काफ़ी हर दफ़ा हम कोई ना कोई एक लड़ाई लड़ते थे। जो काम करता है ना वो एक लड़ाई लड़ता है, और जब आप इसमें आ जाते हैं तो आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि आपने लड़ाई लड़नी है। दूसरा ये हुआ कि मैं पुलिस के साथ मैंने काम करना शुरू किया, बिकॉज़ गवर्नमेंट के बग़ैर हम ये काम नहीं कर सकते। हमारे पार्टनर्स हैं, एक मैजिस्ट्रेट्स हैं, एक पुलिस है और एक सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। जब इनके साथ इनको एक पेज पे लेके आए, हमारे साथ ये हुआ कि 7 बच्चों को हमने स्ट्रीट से रेस्क्यू किया और मलीर चाइल्ड शेल्टर में लेके गए, जो कि एक सिंध का अदारा है। उन्होंने गेट्स नहीं खोले और मुझे कॉल आई कि शायान तुम इतने गंदे बच्चे यहाँ पे भेज देती हो, हमें नहीं पसंद ये बदबूदार बच्चे, क्यों इस तरह ये करती हो। मेरे पास सिर्फ एक चीज़ बची थी, कोर्ट चली गई मैं, और फिर मैंने एक सिविल एक्शन सूट किया जो कि अभी तक चल रहा है, और उसकी जी वो चल रहा है, लेकिन वो उसकी वजह से ये हुआ कि अब ज़रा लोग थोड़ा सा हमें सीरियसली लेते हैं। अब वो दरवाज़े खुल गए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने देख लिया कि CPOs को जब हम कॉल करें, 1121 एक नंबर है, तो फिर भी वो आ जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए आते हैं बिकॉज उनको पता है कि कोई ना कोई हम एक्शन लेंगे। तो जब हमने काम करना है तो हमें फिर मजबूती के साथ काम करना है। और एक जो लास्ट बात मैं करूँगी वो ये है कि हम अपने वर्कर्स को मिनिमम वेज नहीं देते, कहीं पे भी नहीं देते। कोई भी अदारा, आगा खान भी देख लें, कहीं पे भी आप देख लें, जो सबसे बड़े अदारे हैं मिनिमम वेज नहीं देते। 32,000 रुपीज़ एक मिनिमम वेज है, और उसके 8 घंटे के हैं, 4 घंटे के बाद डबल हो जाती है। अगर हम अपने लोगों को वो मिनिमम वेज दें तो शायद वो स्कूल की फ़ीस को दे सके, और वो शायद वो ज़िंदा रह सके और इज़्ज़त के साथ रह सके। लेकिन नहीं, हमारे अदारे ये नहीं करते ना। वो जब हम उनको लिखते हैं, मैं तो हज़ारों ख़त लिखती हूँ, जब उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मैं लिखती हूँ और कहती हूँ कि हम मिनिमम वेज दें, तो वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है किसी को, बट कोई है नहीं इनके ऊपर कोई केस करने के लिए, या कोई है नहीं। लेकिन हम हैं, करते हैं, छोटे स्केल पे करते हैं, और अब काफ़ी लोगों को, कॉर्पोरेट्स को हम लोगों ने इन्फोर्स किया है कि आप मिनिमम वेज दें। सो दीज आर द फाइट्स दैट अगर आप इसमें आए हैं तो फिर आपने लड़ना है, जंग लड़ें। एक मैं क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और हमारे यहाँ पे डीन से रियाज साहब बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट के डीन, इनका भी हिस्ट्री से बड़ा ताल्लुक है, साइंटिस्ट हैं। ये जो एक हमने जो लास्ट बात की ना, ये ख़ास ज़रूरी था इस वक्त इस ऑडियंस के सामने बात करने की। वजह थी कि हम सब यहाँ पे जो बैठे हुए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और आप लोग तो खैर वो थ्रेशोल्ड ब्रेक कर चुके। हम जब भी सोचते हैं कोई काम करने के लिए, हमारे सामने सिर्फ मुश्किलात नज़र आती हैं, और इतनी खौफनाक मुश्किलात होती हैं कि हम उसको अबूर नहीं कर पा रहे होते, और फिर वो ब्रेक नहीं करते किसी और के लिए कुछ करने के लिए। मैं तारीख़ के हवाले से बताऊं, बड़े बड़े नाम सबने सुने हुए। सर सैयद अहमद ख़ान का मैंने आपके सामने नाम लिया, कायदे आज़म का नाम आपके सामने है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और बहुत सारी शख्सियात। आप किसी भी, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लीजिए, हज़रत ईसा की ज़िंदगी देख लीजिए, किसी की भी बड़े शख्सियत ज़िंदगी देख लीजिए, पैगंबरों में से, सोशल लीडर्स में से, पॉलिटिकल लीडर्स में से, उनकी हमें सक्सेस तो पढ़ाई जाती है और कुछ हद तक थोड़ी बहुत मुश्किलात। मसलन सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को मॉडर्नाइज़ करने के बारे में बड़ा काम किया और ये किया, उनके लिए मुश्किलात थी। लेकिन ये जहन में रखें कि सर सैयद अहमद ख़ान जब ये सारे काम कर रहे थे और लोगों से कह रहे थे कि अंग्रेज़ी सीखो और
जदीद तालीम हासिल करो, तो उसी वक्त लोग उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा रहे थे। और ना सिर्फ कुफ्र का फतवा लगा रहे थे, बल्कि एक साहब तो इतने ज़्यादा उसके अंदर जुनूनी थे कि वो हज करने गए सऊदीया, और सऊदीया में हज करने के जब वहाँ पे इमाम काबा से रिटन में फतवा लेकर आए कि ऐसे ऐसे आदमी हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे काम करता है, तो उनके खिलाफ फतवा दो कि ये काफिर है। वो फतवा ला के उन्होंने यहाँ पे तशहीर की कि भैया ये काफिर है, काफिर है, काफिर है, इसकी बात नहीं सुनो। तो सर सैयद को जब पता चला कि सर सैयद को किसी ने एक जुमला कहा, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वो एटीट्यूड है जो आप लोगों में है और हमें बिल्डअप करने की ज़रूरत है। तो सर सैयद किसी ने कहा कि यार आपको पता है एक साहब वहाँ पे हज करने गए थे, वहाँ पे आपके खिलाफ वो कुफ्र का फतवा लेकर लोगों को बता रहे हैं। तो सर सैयद ने जवाब में पता क्या कहा? सर सैयद ने कहा अब ये होते हैं बड़े लोग, उन्होंने कहा मियाँ हमारा कुफ्र भी क्या कुफ्र है, किसी को हज करवा दिया। तो ये है एटीट्यूड देखने का। कायदे आज़म की हम बात करते हैं, कायदे आज़म के बारे में यहाँ पे बहुत कम, शायद मैंने अपनी क्लास में बताया, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए। कायदे आज़म के ऊपर 1944 में एक 19 साल का लड़का खाकसार तहरीक का कारकुन भावलपुर पंजाब से जाता है एक नियत से कि जिन्ना को कत्ल कर दे, और बॉम्बे में जाके उनके घर में उनसे मुलाकात करने का टाइम लेके उनके दफ्तर में, उनके घर के अंदर जो दफ्तर है वहां जाके उन पर छुरी से हमला करता है। क्यों? क्योंकि तुम जो एक अलग मुल्क की बात कर रहे हो हमें मंजूर नहीं। ये कौन कर रहा है? मुसलमान। लड़के का नाम है रफीक मजंगवी। मुसलमान आदमी कायदे आज़म को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है कि मुल्क ना बना दी जाए। ये मुश्किलात हैं। फिर 1940 23 मार्च को क्या हुआ सबको पता है, लाहौर में सबको पता है ना, लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान की बात हुई। उससे 2 दिन पहले लाहौर में क्या हुआ किसी को नहीं पता। लाहौर में ही यही तहरीक ये खाकसार, इन्होंने जलसा निकाला कि हम कब्जा करेंगे लाहौर मिंटो पार्क पे और इनको जलसा करने नहीं देंगे, और वहां पे मारा मारी हुई, उनकी पंजाब हुकूमत से लड़ाई हुई, 20 आदमी मर गए, 20 आदमी मर गए। कायदे आज़म जब उतरे जलसे के जाने से पहले तो उन्होंने कहा कि भाई क्या पता चला ये सब कुछ हुआ है, तो उन्होंने कहा यार पहले वहां ले चलो अस्पताल में जहां पे ये लोग बीमार, जिनके जख्मी तो मर गए अलग, जो जख्मी है वो अलग, तो वहां जाके पहले उनकी आयादत की, उनको फूल और फ्रूट दिए और उनसे कहा कि बेटा आप लोग खैरियत से हैं, उसके बाद अपने जलसे में गए। ऐसे ही नहीं बड़े बड़े काम हो जाते और लोगों को याद रखा जाता, बहुत मुश्किलात आती हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये सवाल है। देखिए मैंने हाँ, वो स्कूल नहीं था, वो ड्रग्स का एक सेंटर बनाया था कि जो स्कूलों में और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अब ड्रग्स पहुंच रही है, लेकिन एक मखसूस टाइम के बाद वो बच्चा जो होता है वो फिर घर में चोरी शुरू कर देता है। वो बहन का जेवर जो होता है उसके लिए वो 70,000 या 7 लाख का सेट नहीं होता, वो उसकी एक जो डोज होती है बस उतने पैसों का होता है, 600 रुपये का, 2,500 रुपये का, 3,000 का। तो कितने ही अच्छे पेरेंट्स हों, एक वक्त आता है उसको घर से बाहर निकाल देते हैं अगर अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इलाज कराने की बात करूं तो मैडम बैठी हुई है, कराची में इस वक्त 1.25 लाख से ज़्यादा NGOs हैं, 1,25,000 से ज़्यादा NGOs हैं। कोविड के बाद शायद ये 5-6 लाख हो गई हों, लेकिन एक भी सेंटर पूरे कराची में ऐसा नहीं है जहाँ कोई बेवा औरत अपने बच्चे को ले जाए कि मेरा बच्चा नशे में लग गया, बेरोज़गारी की वजह से लगा, बहन की शादी का लोड था, कोई भी वजह थी, लग गया, इसका इलाज कर दो। जैसे ही आप इलाज की बात करेंगे पीछे से एक और NGO आई है, बोलेगी हम करते हैं इलाज, हफ्ते का 30,000 रुपये लेंगे। उस 30,000 में सिर्फ नींद का इंजेक्शन दिया जाएगा, इलाज नहीं होगा। वो लड़का जब 8 महीने बाद दोबारा घर आएगा बहन की शादी में शिरकत करने, तो अगले ही रात बहन का जेवर चोरी करके और गायब हो जाएगा 2 दिन के लिए, फिर दोबारा मिल जाएगा लेकिन जेवर बेच चुका होगा। हमने बोला कि हम शहर में एक नशे के आदी अफराद का रिहेबिलिटेशन सिटी बनाते हैं। हमने पूरे शहर में ढूंढा, हमें सिंध गवर्नमेंट की एक नई बिल्डिंग कोरंगी 100 क्वार्टर में मिली जिसके अंदर 1000 लोगों को एडमिट किया जा सकता था। वहाँ हम 2 मिनी सिनेमा बना रहे थे जिसमें 15-15 मिनट की फिल्में चलती, दिखाते कि तुम अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हो, तुम नशे की तरफ क्यों आए। वहाँ डॉक्टरों का पैनल बैठ रहा था, इलाज होता, और कितना ही खतरनाक नशे का आदि फर्द होता 7 दिन के लिए उसके लिए जो सेंटर बनता है, जब वो शुरू में चीखता चिल्लाता है, बगैर तारों वाली वायरिंग हो रही थी कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले, AC ऊपर करके लग रहे थे, पंखे हट रहे थे, सब कुछ
लेकिन ईद के दूसरे दिन मुझे फ़ोन आता है कि 3 ट्रक भर के यहाँ से सामान जा चुका है और चौथा ट्रक जा रहा है। ईद के दूसरे दिन हम कुर्बानी बराए मुस्तकीन करते हैं, जिसमें अली भाई ने अभी इस साल 200 ऊँट भी हमें दिए हैं। हम 5-5 किलो 10-10 किलो गोश्त लोगों के घरों में देते हैं कि तुम्हारा बच्चा भी गोश्त की बिरयानी खाए, गोश्त का कोरमा खाए, इसको तो पता चले गोश्त क्या होता है। और मैडम मैं एक और बात बताऊँ, अगर 50,000 रुपये तनख्वाह भी हो जाए, मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूँ, इस वक्त मिडिल क्लास लोगों के घर में 2 वक्त का खाना खत्म हो चुका है और बच्चों की फीस नहीं दे सकते। 35,000 रुपये रेंट है, 15,000 के इलेक्ट्रिक ले लेके पैसा खत्म। जफर साहब मैं इसमें ऐड करूंगा क्योंकि मेरा बहुत लिंक रहता है लोगों से, और खास करके सोशल साइंसेज के तौर पे मैं लोगों से इंटरव्यू भी करता हूँ। तो अभी प्रोग्राम शुरू से पहले अली शेखानी साहब से मैं बात कर रहा था, आप यकीन कीजिए 2 लाख से 3 लाख की तनख्वाह का ब्रैकेट वाला आदमी भी खुदा की कसम किस तरह की जिंदगी गुजारे हमें पता है। अब आप सुने क्योंकि अब छोटी सी मिसाल है, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, बीकन में पढ़ रहे हैं, 25,000 75,000 रुपये ये चले गए। अच्छा वो एक उसका एक भरम है, वाइट कॉलर है, एक अच्छे से रहता है, एक गाड़ी है, बिजली का बिल आ रहा है 40-50, जो अच्छे से रह रहा था, जो बिजली का बिल उसी घर का जो पहले आज से 2-3-4 साल पहले तक वो 10-12-8,000 रुपये आता था, अब वो 40-50 की ब्रैकेट में चला गया। अभी 3 महीने से जो वो है गैस का बिल, वो जो 1-1.5 हज़ार आता था वो 8-9 हज़ार चला गया। लेकिन तो सर मैं एक मसला बताऊं, मुश्किल हो चुकी, सब मुश्किल ना 50,000 मुश्किल सुने 2 लाख वाले। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के 80% आवाम की जिनकी आमदनी है 40 से 50,000, 35,000 रुपये रेंट, 30,000 रुपये रेंट, ठीक है, 15,000 रुपये के इलेक्ट्रिक, 5,000 रुपये सुई गैस, 1 रुपया नहीं है, खाना कहाँ से खा रहा है? इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं, ना हुकूमती अरकान देने को। अमीर आदमी को पता ही नहीं है दर्द, उसको नहीं मालूम कि स्कूल कॉलेज की फ़ीस के लिए या सेमेस्टर की फ़ीस के लिए माँ कैसे बेटी का जेवर बेचती है, कितने लोगों को गिरवी रखवाती है। बात ख़त्म करूँगा कि उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं शाम में, तो आखिरी ट्रक हम पकड़ लेते हैं, पर्चा कटवाते हैं, मालूम होता है सारा सरकारी स्टाफ शामिल है, तमाम खिड़कियाँ 100 के 100 कमरों की, तमाम दरवाज़ों की चौखटें, तमाम स्टील का सामान, तमाम वायरिंग सब उखाड़ दी। हमने जब पर्चा कटवाया और लोग पकड़े गए, उसके बाद पीछे से गेम होता है और आज तक वो बिल्डिंग हमारे हवाले दोबारा की नहीं गई, हमसे ही ले ली गई। एक तो हम एहसान करने जा रहे थे, पाकिस्तान का पहला फ्री रिहेबिलिटेशन सिटी बनाने जा रहे थे, और जो कुछ बनाने जा रहे थे, मैडम ने बोला ना कि बाथरूम बनाने के लिए भी आपको लिख के देना पड़ता है सरकारी जगह पे, और अगर बना लिया तो आगे पूछ रहे हैं क्यों बनाया। तो अब सोचें कि अगर हमने भी सरकारी जगह ली थी तो कितना पेपर का पेट भरा होगा। सब कुछ होने के बाद, जगह अलॉट होने के बाद भी जब हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई कि तुमने जो चीज़ें चोरी की हैं यहाँ से वापस दो, और वो सामान पड़ा कोर्ट में सड़ रहा है, लेकिन हमारे से वो जगह ही रोक ली गई है। यानी ये पहला सेंटर भी कराची में नहीं बन रहा। कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? जी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसमें इम्पैक्ट, मैं इसी सवाल को इम्पैक्ट आगे बढ़ाऊंगा ताकि इम्पैक्टफुल बन जाए कि वो जो भी आपने जितने भी लोग किए, आपके पास यकीनन डेटा होगा, तो उनकी ज़िंदगियों पे क्या फ़र्क पड़ा है, आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि उसको जज करने का, और स्पेसिफिकली वो सारे लोग जो हैं उनको अपनी ज़िंदगी में तो फ़ायदा होगा ही होगा उसको कमाने से, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है आईटी की तालीम से पाकिस्तान, जो भी आप और मैं घर में भी बैठ कर काम करेंगे तो पाकिस्तान को जो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो पैसा बाहर से आ रहा है, वो डॉलर में आ रहा है। वो पहले $500 भी बैठ कर कोई कमा रहा है घर में, और $500 वाले अगर 5,000 बच्चे बैठे हुए हैं तो $500 मल्टीप्लाई पे 5,000 करते हैं, वो बाहर से फॉरेन करेंसी आ रही है, तो उससे हमारा फॉरेन डेफिसिट जो है ना वो कम हो रहा है। तो उसका इम्पैक्ट बारे में बहुत अच्छा सवाल। आपने अगर हमारा पेज फॉलो किया या देखते हैं तो मैं जो भी खुदकुशी करता था ना, मैं उसके घर जाके वीडियो बनाता था। मैं रियासत को बोलता था तुम्हारी वजह से मरा है। जब वो सहाफ़ी ने खुदकुशी की सगीर सेंटर में, तो उसने पर्चा लिख के छोड़ा कि खाना तो मैं जेडीसी के दस्तरखान से लाता था, लेकिन फ्लैट का रेंट कैसे देता। अब मेरी बीवी के सामने मुझे मार रहे थे या तंग कर रहे थे, तो बच्चे सो रहे थे, सर्दी थी, सर्दी में उसके बच्चे बगैर स्वेटर बगैर शर्ट के ज़मीन पे सो रहे थे। उसने बच्चों के ऊपर ही पंखे में रुपट्टा बांधा, वहीं लटक गया। बीवी बेचारी कमरे में सो रही थी। जो भी जब मैं गया हूँ तो बच्चे उस वक्त भी सो ही रहे थे, छोटे वाले। तो मैंने कहा क्या किया जाए। मैंने उस वक्त रिसर्च की, मालूम हुआ जी लाहौर में बहुत अच्छा ई-कॉमर्स बिक रहा है। कितने का बिक रहा है जी? अमेजॉन बिक रहा है 1.5 लाख रुपए का कोर्स, दराज, ईबे, ये वो शिप, सारे 1.5 लाख 2 लाख। तो मैंने उस वक्त अच्छा इसमें भी एक पूरा, मैं इसमें ड्रामा बहुत हाई लेवल का कर सकता था। मैं कहता जी नेशनल स्टेडियम में, हॉकी स्टेडियम में, फुटबॉल स्टेडियम में टेस्ट। तो मैंने 2.25 लाख बच्चों को एडमिशन दिया, तो नेशनल स्टेडियम 10 दिन तक पूरा भरता, तो कितना फेम मिलता हमें? पूरा शहर जाम हुआ हुआ, हमने कुछ नहीं कहा।
हमने कहा जो फॉर्म भरेगा, मर्द औरत बूढ़ा बच्चा जवान, ये वो कोर्स है कि वो औरत जो सिर्फ बच्चों का कंप्यूटर घर में रात में बंद करती है ना, बच्चा यूज़ कर रहा था मुझे इससे ज़्यादा नहीं आता, उसको भी हम सिखाएंगे। और हमने 3.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 3.25 लाख को एडमिशन दिया। अब तक हम 80,000 मर्द औरत 65-70 साल की औरत भी शामिल है इसमें, कि वो घर में अपना तकिया का गिलाफ और चादर सिलती है, उसकी अमेज़ॉन पे शॉप बनवा दी है, उसका बच्चा उसकी तस्वीर खींच के डाल देता है, वो औरत $2 $3 प्रॉफिट पे बेच देती है। दिन में वो औरत अगर $8 कमा रही है तो बुरा नहीं है अगर वो 10 दिन के अंदर $80 पाकिस्तानी 20,000 25,000 और महीने का 60,000 वो औरत कमा रही है। कल लाहौर में हम IT सिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं, अली शेखानी साहब के हाथ से हो रहा है और मिनिस्टर एजुकेशन, ये दोनों लोग कर रहे हैं। हम वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर जदीद तरीन कोर्स जिनकी मार्केट वैल्यू $8,000 है, अगर आप बैठ के कर रहे हैं, ऑनलाइन करेंगे तो $5,000 है, वो हम फ्री में शुरू कर रहे हैं। और हम कराची में भी एक जगह और ले रहे हैं बड़ी, हर क्लास में 5,000 बच्चा बैठेगा। अभी गवर्नर साहब का भी जो IT प्रोग्राम है, JDC की जो जिम्मेदारी उन्होंने लगाई थी, चाहे कुर्सियाँ हो टेबल हो, जो सब हमने करके दिया और हम पीछे हैं। हम चाहते हैं अच्छा काम जहाँ भी होगा हमारा उसमें किरदार है, और इस वक्त वाहिद हल यही है। आप यकीन करें मेरी बच्ची की उम्र है 1.5 साल, वो सो के उठती है, वो दूध नहीं मांगती अपनी माँ से, वो बोलती है व्लाइडर निक्की देखना है मुझे। ठीक है, हम लोग आप लोग जो वीडियोस देख के अपनी टेंशन डिप्रेशन खत्म कर रहे होते हैं ना, वो एक बंदा आया, एक पतीला ला के रखा उसने बड़ा सा जंगल में, एक बकरा पहले दिखाया, फिर बकरा उठा के ऊपर मारा जोर से उसने, हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है कि सही है बकरे की खाल कैसे उतरी होगी, ज़िबा किसने किया होगा, वो इस उलझन में पड़ ही नहीं रहा ना, वो इस उलझन में पड़ रहा है कि बकरे को ज़िबा किया है कि बकरे को, किसी टेंशन में नहीं। उसने आपको दिखाया यूं मसाला लिया ऐसे फेंका, यूं मसाला लिया ऐसे फेंका, और उसके बाद उसने 3 मिनट के अंदर आपको दिखाया कि एक देग बिरयानी तैयार हो गई और 6 बच्चे या 300 बच्चे बैठे में धोती पहन के, और पत्ते के ऊपर उसने चावल रखा। वो वीडियो हमने देखी, हमें खुद भी नहीं पता हमने उससे क्या सीखा, लेकिन एक दिन में 40 मिलियन व्यू हो जाती है वो वीडियो, और उस शख्स को एक वीडियो से एक दिन का $16,000 मिलता है। सोचें 30 दिन में कितना मिलता है, पढ़ लीजिए आप भी और मुझे इतना कमा के दिखा दीजिएगा। हम जिन लोगों का मजाक उड़ाते हैं ना कि ये क्या कर रहा है रोड के ऊपर, ये आप यकीन करें लोग मोटरसाइकिल मैकेनिक सिर्फ दिन में एक चीज दिखाना शुरू कर देना वीडियो में, 65 दिन तक अगर दिखाएगा तो यूट्यूब उसको वायरल कर देगा कि तू मुसलसल दिखा रहा है, तेरा कैमरा अच्छा है और तू रोजाना लोड करता है। उसके बाद वो शख्स उस चीज पे कमाएगा। हमारे लोग शर्मा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं अभी एक बहुत बड़े प्रोग्राम में गया, वहां पर तकरीबन 4,000 लड़कियां बैठी थी। मैंने उनसे पूछा तुम में से कितनी लड़कियां अच्छा मेकअप इस्तेमाल करती हैं? किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा तुम लड़कों में कितनों ने अपनी जेब से iPhone 15 खरीदा है? किसी एक ने हाथ नहीं उठाया। मैंने एक सीधी सी बात की कि हमारे शहर में इतने सारे 5 स्टार होटल हैं, सबके अंदर बुफे अफ्तार होता है, तुम में से कितनों को जिंदगी में एक बार भी तुम्हारा बाप रमजान में लेकर गया चलो आज बुफे अफ्तार डिनर करते हैं? किसी एक ने हाथ नहीं उठाया। तो मैंने कहा तुम कौन सी जिंदगी जी रहे हो? अच्छा जूता तुम नहीं पहन सकते नाइकी का, अच्छा मोबाइल तुम अपनी जेब से नहीं खरीद सकते, अच्छे रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ जिंदगी में एक बार खाना नहीं खाया। तो मैंने कहा शर्माओ नहीं, थोड़ा सा एक देखें, कुछ नहीं करना, कोई भी एक चीज लेके। आप यकीन करें मैं वीडियो बनाता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं कहता हूं ये शुतुरमुर्ग है। अबे तो है शुतुरमुर्ग भाई, उसके ऊपर 1 लाख शेयर, 25,000 शेयर। अब तो ये भी सवाल होता है कि JDC भी यूट्यूब से कितना कमा रहा होगा? JDC को बहुत पैसा मिलता है, JDC को यूट्यूब से लाखों डॉलर मिलता है, और जो मेरी वीडियोस होती हैं उससे भी लाखों डॉलर्स आते हैं, फेसबुक से भी, और वो सारा पैसा मैंने आज तक नहीं लिया, उसमें JDC का अकाउंट नंबर डला हुआ है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप कुछ नहीं करें, जो पढ़ा है सिर्फ ये डालना शुरू कर दें, 65वीं वीडियो के बाद यूट्यूब आपको भी वायरल कर देगा। लेकिन डालें, कमाएं भाई। मैं इसी पॉइंट पे आई थिंक फ्रॉम द हाउस एंड फ्रॉम पाकिस्तानी कम्युनिटी टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू propose an idea that why not Ali Shekhani, you as a philanthropist, invest or kind of donate in a fashion कि ये जो हमारा जो ऑनलाइन वाला जो भी सिलसिला है जो कि इन्होंने किया और भी कुछ लोग कर रहे हैं, तो वो एक बड़े उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मैंने अभी देखी है, मैंने क्योंकि मैं बहुत विजिट करता हूँ, मेरा काम है और मेरी ख़ास एक आदत है बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट, तो हम जहाँ जाते हैं हम देखते हैं कि भाई ये क्या है, क्यों है, क्या हो रहा है, तुम कहाँ से कैसे हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये एक ट्रेनिंग हो चुकी है 21-22 साल से। तो उसमें मुझे पता चला, मैंने खुद नोटिस किया कि गाँव छोटे छोटे शहरों की लड़कियाँ बच्चियाँ जो कि अपने घर से बाहर जाके काम करना उनको घर में अलाउड नहीं है, वो बच्चियाँ $200, $400, $500 महीने के घर में बैठे कमा रही हैं। तो वो एक जो अनटैप्ड लेबर फोर्स है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी, उसके लिए आप कुछ इसके अंदर कुछ आप अगर आपने नहीं सोचा तो हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप करें, और अगर आपने सोचा तो उसके बारे में प्लीज़ डू शेयर योर आइडियाज।
मैं ज़रा भी नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आज इसके ऊपर एक किस्सा सुनाता हूँ। आज से कुछ 3-4 दिन पहले की बात है। गवर्नर हाउस में मैं, गवर्नर साहब, ज़फ़र भाई, हम लोग बैठे हुए थे। तो उनका आईटी का वहाँ पर एक 5,000 बच्चों का जो ज़फ़र भाई ने बनवा कर दिया है गवर्नर हाउस, अभी जेडीसी ने बनवा के दिया। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ पर ऐसी बात बात के ऊपर हमने 29 लैपटॉप का अनाउंस कर दिया गिफ्ट के बच्चों को देने के लिए, राइट। कल रात को 4:30-5 बजे मैं कुछ काम कर रहा था होटल में, तो उसमें कोई 12 से 14 कमेंट्स थे कि यार ये लैपटॉप तो बिक जाएंगे, समझे। अब मैंने दिए नहीं है, उससे पहले बिक गए, तो आज लैपटॉप देने के हैं। तो सोच ही ना स्टार्ट होती है कि वो लैपटॉप से पैसा नहीं बनाना है, वो लैपटॉप को 2-2.5 लाख रुपए में बेच के मुझे आईफोन खरीदना है। उस आईफोन से मुझे क्या करना है, मुझे टिकटॉक वीडियो बनानी है। What I was saying in terms of training. मैं उस पर आ रहा हूँ, राइट। तो एक जो मास आवाम है वो पैसा बनाना चाहती है, पर ये कुछ चीजें देख देख के, जैसे मैडम ने कहा 32,000 रुपए मिनिमम वेज है, उसमें क्या हो सकता है। कल रात को मैं कहीं खाना खाने गया, उसका बिल कोई 2.25 लाख रुपए आया, तो कैसे 32,000 रुपए में कुछ कर सकते हैं। जफर भाई ने कहा 50,000 में भी कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने जफर भाई को कहा कि आईटी का प्रोग्राम हो, मेरे नज़दीक अमेज़ॉन का बहुत अच्छा काम है। मेरी जो भाई बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, और उनकी बात, और जो बाकी लोग हैं, ऑनलाइन काम देखना चाहिए, एआई पे काम करना चाहिए। तो मेरी और जफर भाई की पिछले 3 दिन से इस बारे में बात चल रही है। इंशाल्लाह जफर भाई इन 2-3 मंथ्स हमको बड़ा अनाउंस करेंगे, राइट। हम लगे हैं उसमें। That is very good. मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं। कंक्लूडिंग कमेंट है, बस खत्म उसके है। बाद मैं बस खाली एक चीज़ बता रहा हूँ, खौफ बता रहा हूँ आपका। अभी सर मोइज़ ने एक बात बोली कि मैंने गांव की लड़कियों की वीडियो देखी, वो घर के अंदर बैठ के काम कर रही हैं। इसमें खौफ कहाँ था पता है आपको? सर खौफ कहाँ था इसके अंदर, बताएं। सोशल माशरा है कि आपका खौफ, जो आपको खौफ था, आपने एक बात बोली। नहीं, मुझे खौफ नहीं, मैं हम कह बता रहा था रहे हैं। जो निकलने दिया नहीं जाता था, आपने वो जिसकी जो खुशी वीडियो हुई कि वो देखी कर ना रहे हैं। सर, वो वायरल है। जो भी सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसको यूट्यूब ने वायरल कर दिया है, वो 300-400 नहीं कमा रहा, वो 40। नहीं, मैं एक चीज आपको नतीजे मैं कुछ बता। और कह रहा था, आई एम सॉरी, मैं शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाया। मैं वो कह रहा हूँ कि वो बच्चियां घर में बैठ के ई मार्केटिंग कर रही हैं और $400 कमा रही हैं। वो उनकी बात कर रहा सुने हूं। वीडियो वाली, यूट्यूब वाली, मैं बताता हूं, जो मार्केटिंग, जो भी शख्स वायरल होकर आपके मोबाइल तक पहुंच गया ना, जिसको आपने अप्रोच नहीं किया, सर वो 40-40 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं। आप देखें, हमारे लोग बुरा मान रहे होते हैं कि मास सफदर ने अपनी बीवी को इतना महंगा नेकलेस दे दिया, उसने एक और परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च कर दिया, नादिर अली ने ये नहीं करना है। वो कमा रहे हैं 8-8 करोड़ रुपए महीना, और ये आपकी तनकीद, आपकी हंसी मजाक, या आप, वो कमा रहे हैं, हर चीज रीच दे रही है, हर चीज व्यू दे रहा है। तो आप भी उतरे हैं भाई। बैड पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। बात वही वाली है भाई, आप लोग सोचते रह गए। मैं इतने सारे यूट्यूबर्स को जानता हूं, अगर उनकी तनख्वाहें बता दूं, आप अब मेरा मजाक उड़ाएंगे, उनको महीना क्या मिल रहा है। और उसके अलावा मैं एक सोशल वर्कर हूं, आज माशरा किधर जा चुका है मैं आपको बता दूं। मायू मेहंदी में शिरकत करने का 10 लाख रुपए ऑफर करते हैं, और अगर किसी बड़े आदमी के बेटे का वलीमा है तो 50 लाख रुपए ऑफर होती है कि आधे घंटे आप स्टेज पे बैठेंगे। मुझे तो ये जो फिल्में हैं बड़ी बड़ी, जो इतने बड़े लोग हैं जिनके फैन हैं मिलियंस में, उनको क्या मिलता होगा। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा टाइम खाली सोशल मीडिया को दें, पॉजिटिव दें। आप देखें आपकी इक्तिसादी सूरत हाल जाएगी कहाँ। भाई 1 घंटे बैठे हैं आप, ज़ैबे से 1 करोड़ नहीं दे सकता आपको। नहीं, हम मांग भी नहीं रहे, हमने चाय भी नहीं पी। Yeah, we would just like to ask the panelists to stay seated, and we would like to just welcome our chief guest, who is the Dean Faculty of Social Sciences at Zabist University, Dr. Riaz Sheikh. We would like to invite Dr. Riaz Sheikh on stage to present our panelists with a token of appreciation.